alaikum, grade 10. How are you? Faiza Nadeem is here with your English lesson. And as usual, she is wishing and praying and hoping that all of you are healthy, wealthy and fine. All of you are going to your school regularly, attending your lessons, studying, are obedient to your parents, and the first and the foremost thing is concerned about your salat. What we are going to do today, I'm going to tell you within a sec. So, let's start today's lesson. Ji bete or bitiya, what is the board telling you? The board is telling you to take unit number 5, page number 55 to 56 out. And the name of the topic, the name of the unit is The Rain. It's a poem. It's a poem which is written by W.H. Davies. Right? The poem is on the board along with the word and their translations. Although this poem may never come as a translation in your paper, but still I have done the translation because I don't want you to lose or leave any chance of losing any of your marks. So I have written the words and the translation on the board. What usually comes as far as poems are concerned is your summary and your paraphrasing. So let me read the poem out for you first and I'll do the paraphrasing side by side. What you need to do is to keep a pencil in your hand and to copy down whatever I have said side by side at the side or at the empty pages of your book, related to the stanza that I'm going to paraphrase, so that you don't have any chance of missing any marks in your final exam. So I'll start reading the poem and you start writing down the paraphrasing. I hear leaves drinking rain. Okay, so here the poet has used a metaphor, which means that since the rain falls on the leaves, the sound it creates, the clatter it creates seems as if we are gulping down our drink. जब हम पानी पीते हैं तो आवाज आती है ना एक स्पेसिफिक गल्पिंग की, तो वही आवाज, उसी से सिमिलर आवाज उस पत्तों के अंदर आती है जिस पत्तों के ऊपर पानी गिर रहा होता है. ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि मुझे पत्ते बारिश का पानी पीते हुए सुनाई देते हैं. Is this possible? Can leaves drink water? No. So the poet has used a metaphor. Metaphor क्या होती है आपकी? Metaphor आपकी figurative language होती है, जिसमें आप दो चीजों को compare करते हैं. Non-living things को living thing की quality से compare करते हैं. ठीक है? I hear rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop. वो ये कह रहा है कि जो दरख्त के टॉप पे पत्ते हैं वो सबसे अमीर है. ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट रेन ड्रॉप्स जो हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो गरीब गुरबा हैं, जो पत्ते दरख्त की निचली तरफ हैं, उनको वो ड्रॉप बाय ड्रॉप रेन वाटर प्रोवाइड करते हैं. ये तो हो गई बेटा इसकी शैलो मीनिंग. अगर हम इसकी डीप मीनिंग के अंदर जाएं तो हम ये जानेंगे कि दिस इज वन ऑफ द ट्रॉमा ऑफ एवरी सोसाइटी इन द वर्ल्ड. द रिच गेट्स द बेस्ट एंड द पुअर गेट्स whatever is left behind the rich, and that too drop after drop, one by one, not all collectively but drop after drop. It's a sweet noise to hear these green leaves drinking near. So the poet over here is enjoying the sound of raindrops on the leaves. He is saying that it's such a sweet noise to hear that the raindrops are falling on the leaves, drop by drop, khatra ba khatra,
पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं लीव्स के ऊपर, और वो जो साउंड क्रिएट कर रहे हैं वो पोएट को बहुत फैसिनेट कर रहा है, वो बहुत इंजॉय कर रहा है उस साउंड को। ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था, ये आपका सेकंड स्टैंजा है। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस द रेन शैल स्टॉप। और वो कह रहा है कि जब सूरज निकल आता है, when the sun rises, when the clouds disperse and the sun comes out, the rain stops. ठीक है? A wondrous light will fill each dark round drop. यहां पर shallow meaning तो यही है ना कि when the sun comes out, the clouds disperse, or the clouds have fallen down, they have disappeared because whatever they were carrying has been splashed onto the earth. Then the sun comes out. और अगर हम इसको बहुत deep rooted ले लें तो हम ये कहेंगे after every problem comes a solution. After every darkness there is light. So whenever the problem ends, the entire world is filled with light. You come across light, blessings, happiness once the sun is appearing, once the sun comes out. Each dark round drop, your problems, your issues, your dark round drops, each of them are negated, they are erased, or they are filled with a new hope when the sun comes out. I hope this sun shines bright, it will be a lovely sight. Now over here, the poet is hoping that the sun will shine bright, so that the leaves that have been recently washed with the rainwater will look bright and lovely. Shallow meaning है, अगर हम इसको deep rooted देख लें तो हम ये कहेंगे कि if Allah Almighty will bless us through and through our life, then each and every problem, each and every event of our life will shine brightly, will look brighter, will look better. ठीक है? तो ये इसकी deep rooted meaning है. Let's move on to the vocabulary and meanings. आपको पता है हम ये क्यों करते हैं? एक translation के लिए. आपके translation के 8 marks at stake होते हैं अगर आपने अपने chapters की translation नहीं की. आपके किसी भी chapter से कहीं से भी कोई से भी 3 paragraph आपका पेपर मेकर देता है और आपको ये एक्सपेक्ट करता है कि उन 3 में से किसी भी 2 की ट्रांसलेशन आपकी आंसर बुकलेट में मौजूद हो, और हर पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कैरी करती है 4 एसेंशियल मार्क्स. तो हमने चाहे वो पोम है उसकी भी ट्रांसलेशन ओवरलुक नहीं करनी, उसकी भी ट्रांसलेशन लाजमी करनी है. वंस यू आर डन विद द पैराफ्रेजिंग, लेट्स राइट द ट्रांसलेशन, अंडरलाइन द वर्ड एंड राइट इट्स मीनिंग ऑन द टॉप. लीव्स पत्ते, टॉप सबसे ऊंचा सिरा, बीनीथ नीचे, स्वीट नॉइज जल तरंग, नियर नजदीक, वंडरस खैरा कर देने वाली, राउंड गोल, सनशाइन धूप, ब्राइट चमकदार, लवली रूह परवर, साइट नजारा, रिच और पुअर, गरीब और घने. ठीक है, ये आपकी थी वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स. Let's move on to the exercise that is present after the end of this unit. आपके हर chapter, हर unit के comprehension के बाद आपकी labeled exercises हैं. Vocabulary, comprehension, writing skills और grammar. आज के इस lecture में हम unit 5 की vocabulary exercises को touch करेंगे. So let's move on to the vocabulary exercises. G. Bitto, what is the board telling you? Board is telling you that we are going to start with vocabulary exercise A. And exercise A is asking you to turn the given words into their opposites and
Then construct sentences from both the word and its antonym. Antonym क्या होते हैं? Opposites. मैंने पहले ही आपको क्लू दे दिया. और synonyms क्या होते हैं? Synonyms होते हैं words with similar meanings. Similar meanings का मतलब हरगिज definitions नहीं होता. Definition वो group of words होती है जो आप यूज करते हो किसी भी word को explain करने के लिए, जबकि synonym उससे अलहदा वर्ड होता है जो उससे सिमिलर मीनिंग रखता है. ठीक है. और एंटोनिम वो वर्ड होता है जो उसका ऑपोजिट होता है. वर्ड्स आपके हैं रिच, पुअर, टॉप, बॉटम, नियर, फार, लाइट, डार्क, ब्राइट, डल, नॉइज, साइलेंस, लवली, अगली. आई हैव गिवन यू द वर्ड बैंक. आई हैव कंस्ट्रक्टेड एंटोनिम्स फॉर यू. व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस. अब मैं क्या करूंगी? मैं वर्ड के सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखूंगी और उसके ऑपोजिट या उसके एंटोनिम के सेंटेंसेस आपको वर्बली दूंगी, ताकि आपको दोनों सेंटेंसेस क्लियरली मौजूद हों अपने सेंटेंसेस के बैंक में. इनको ऐड कर दो. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कहीं से भी कोई भी वर्ड दे दिया जाता है, आपको उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना होता है, और आपको जो सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने होते हैं उनके होते हैं 8 में से 5. यानी आपको कोई से भी 5 सेंटेंसेस आउट ऑफ 8 वर्ड्स कंस्ट्रक्ट करने होते हैं. राइट. सो रिच, कंस्ट्रक्ट इजी सेंटेंसेस. माय अंकल is a rich man. और पुअर का क्या सेंटेंस हो जाएगा? वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर. टॉप, योर फाइल इज ऑन द टॉप शेल्फ. ठीक है. एंड द बॉटम, डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द वेल इज अननोन. Near, I want to go to the park near my house. And far, we should not go far away from home or else we will get lost. Light, I enjoy playing cricket in daylight. ठीक है. मुझे नाइट मैचेस नहीं पसंद. And dark, children are not supposed to leave their houses after dark. Bright and dull, you are wearing a very bright pink color shirt if you want to add up to. Dull, don't be so dull. Get up and do some activity. Noise, there was a lot of noise in the classroom after the teacher left. ठीक है. And silence, the class was filled with silence as soon as the principal entered into the room. Lovely, and its antonym is ugly. Your hairstyle suits you. You are looking lovely. This color combination that you have been using is ugly. It's not going or it's not matching with each other, so avoid using it. Right? So I've given you the sentences of all the words and their antonyms. Words are on the board. The antonym sentences I've given verbally. Let's move on to denotations and connotations. Denotations और connotations क्या होती हैं? Denotations वो होती हैं जो किसी भी word की उसकी literal meaning हो. ठीक है. कोई भी word है उसकी जो literal meaning है वो denotation है और जो उसकी figurative meaning है वो connotation है.
लिटरल और फिगरेटिव क्या होती है, मैं जब ये आपके साथ करूंगी, ये एक एग्जाम्पल जो बोर्ड पे है, तो आपको इसको और क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी. एक सेंटेंस है जैसे अदील वॉज सरप्राइज्ड, अदील वॉज अमेज्ड, अदील वॉज एस्टोनिश्ड. इन सब तीनों अल्फाज की मीनिंग्स जो हैं वो सरप्राइज ही हैं. सरप्राइज, अमेज्ड या एस्टोनिश्ड, कुछ भी आप यूज कर लो, इसके मतलब तकरीबन सेम है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगहों पे यूज होते हैं. ठीक है, आप एक गिफ्ट देखोगे अपना सरप्राइज, तो आप उसको देख के सरप्राइज होगे, आप एस्टोनिश्ड नहीं होगे. ठीक है, आप अगर किसी की परफॉर्मेंस देख रहे हो और आप उसको देख के महजूज हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो आप अम्यूज होगे, नीदर आप सरप्राइज होगे नॉर आप एस्टोनिश होगे. तो ये होती है कॉनोटेशंस के डिफरेंट जगह पे एक जैसे जो अल्फाज हैं वो डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं. ठीक है, अब इसके बाद आपसे क्वेश्चंस दिए गए हैं. ये एक्सरसाइज बी है, उसमें आपसे पहले पूछा गया है कि जर्नल मीनिंग दे इन तीनों एक्सप्रेशंस की. तो यू विल राइट दैट द जर्नल मीनिंग ऑफ ऑल दीज थ्री एक्सप्रेशंस इज द सेम, दैट इज सरप्राइज्ड. सेकंड क्वेश्चन इज एडिशनल मीनिंग दे एस्टोनिश की. तो एडिशनल मीनिंग एस्टोनिश की आप दे सकते हो अस्टाउंड, स्टार्टल और अमेज. ठीक है, जो एस्टोनिश की एडिशनल मीनिंग है वो इन तीन अल्फाज से भी डिनोट हो सकती है, ये भी तीन उसके सिनोनिम्स हैं. थर्ड इज वुड अ पर्सन बी सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड एट सीइंग अ गोस्ट. अब आप गोस्ट देख के सरप्राइज नहीं होगे और आप गिफ्ट देख के एस्टोनिश नहीं होगे. देखा दोनों अल्फाज का डिफरेंस. ठीक है, डिनोटेशन तो इसकी सेम है, हैरान हो जाना, लेकिन कॉनोटेशन डिफरेंट है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल हुआ है. अगर आप किसी गोस्ट को देखोगे तो आप एस्टोनिश हो जाओगे, आप सरप्राइज नहीं होगे. करेक्ट है. अच्छा, इसके साथ इसकी एक्सरसाइज सी की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज सी आपको ये कह रही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशंस आपने फाइंड आउट करने हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन क्या होते हैं? पॉजिटिव वो जिसको आप यूज करें तो आपको लगे कि हाँ ये अल्फाज जो है ये कम दिल दुखाने वाला है. ठीक है, और नेगेटिव वो जब आप किसी से सख्त गुस्से में हो, आपका सख्त उससे नाराजगी हो और आप उसका दिल दुखाना चाहें, तो आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो है नेगेटिव कॉनोटेशन. ठीक है, जैसे आपने ये, अब हमने मोर पॉजिटिव करना है ना. जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है, आवर ट्रिप टू द खेरा माइंस वाज फाइन या वंडरफुल. दोनों का मतलब तो एक है, ग्रेट. ठीक है, लेकिन फाइन का मतलब एवरेज है, वंडरफुल इज वंडरफुल. तो यहाँ पे अगर आपने मोर पॉजिटिव रखना है, अगले का दिल रखना है, उसके दिल को परेशान नहीं करना, तो आप कौन सा यूज करेंगे? आप यूज करेंगे वंडरफुल. ठीक है, डैश पीपल रोल्ड ऑन द रोलर कोस्टर. जी, आपका फ्रेंड है एंड ही सेज दैट आई एंजॉय रोलर कोस्टर राइड्स. आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसका दिल रखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे ब्रेव पीपल एंजॉय रोलर कोस्टर राइड्स. ठीक है, और आपको वो सख्त बुरा लगता है, वो लड़का क्लास में आपको सबसे बुरा लगता है, वो लड़की क्लास में आपको सबसे बुरी लगती है, तो आप कहेंगे फूल हार्डी पीपल गो ऑन रोलर कोस्टर राइड. ठीक है, तो पॉजिटिव कौन सा हुआ? ब्रेव. ये आपका पॉजिटिव हुआ. We saw dash animals in the zoo. अरे भाई, weird animals. के fascinating animals. Fascinating animals because we are writing positive connotation. आपको कोई zoo सैर कराने लेके गया है और आपको वो जहर लगता है, उसने आपको आइसक्रीम नहीं खिलाई because they believe that the ice cream was not hygienic. आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, घर आके आपने अम्मी अब्बू को रिपोर्ट की कि वी सॉ वियर्ड एनिमल्स. नहीं ना, आपने एंजॉय किया है बहुत ज्यादा, क्योंकि वापसी पे आप मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम खा के आए थे.
ठीक है. So we saw fascinating animals in the zoo. Some of the monkeys made amusing या hilarious. Hilarious कहते हैं बहुत ज़्यादा funny, जिसको देख के आपको हंसी आए, ठीक है. और amusing यानी कि जिसको देख के आप सरप्राइज हो जाएं, amuse हो जाएं. तो you will use the word amusing. ठीक है. Everyone had a dash on his or her face on the way home. This is smile. And what is smirk? This is smirk. तो कौन सी पॉजिटिव है? कौन सी? राइट, स्माइल. स्मर्क पॉजिटिव लग रही है आपको? कोई गंदा काम करते हो तो मुंह पे क्या होती है? स्मर्क. किसी को तंग करते हो तो मुंह पे क्या होती है? स्मर्क. तो स्मर्क इज डेफिनेटली नॉट अ पॉजिटिव. मुस्कुराहट. राइट. वी नाउ मूव ऑन टू मोर नेगेटिव. अब हमने नेगेटिव कॉनोटेशंस यूज करने हैं. ऊपर मैंने आपको नेगेटिव रूल आउट कराए थे, अब आपने नेगेटिव करने. अब आप उस शख्स से बात कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और आपने सारे गलत अल्फाज इस्तेमाल करने हैं. वी बॉट डैश सोवेनियर्स एट द अम्यूजमेंट पार्क. अब आपने कोई रिस्क नहीं लेना, आपने कोई दिल किसी का नहीं रखना, तो आप हरगिज इनएक्सपेंसिव नहीं कहेंगे, चीप. ठीक है. इनएक्सपेंसिव थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल लग रहा है ना, किसी का दिल नहीं दुख रहा, तो हमने दिल तो दुखाना है, हमने नेगेटिव बात करनी है, तो हम क्या कह रहे हैं? चीप. There are 3 more sentences of this exercise. Let's do those and then we'll move on to the next vocabulary question. I hate a dash sandwich. Moist होता है damp, हल्का हल्का सा पानी वाला. लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी ने मुझे बहुत सॉगी सैंडविच दिया है. सॉगी सैंडविच किसको अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं अच्छा लगता. जिसमें पानी गिर जाए सैंडविच में, गीला गीला हो जाए, वो तो बिल्कुल मजे का नहीं लगता ना. तो किसी ने आपको दे दिया, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आपने क्या कहना है? आई हेट सॉगी सैंडविच. आई डिडंट लाइक द डैश ऑन द जेस्टर्स फेस. ग्रिन और स्मर्क. क्या नहीं अच्छी लगती? स्मर्क. ठीक है, ये नहीं अच्छी लगती. जेस्टर कौन होता है? जेस्टर क्लाउन होता है. अब द क्लाउन वॉज नॉट हैविंग अ ग्रिन, द क्लाउन वॉज हैविंग अ स्मर्क, यानी क्लाउन दूसरों का मजाक उड़ा रहा था. इट मेड मी फील अनईजी या फ्राइटेंड. अनईजी पॉजिटिव है, ठीक है, सॉफ्ट सा वर्ड है, हम यूज करते हैं सख्त ही नेगेटिव वर्ड which is frightened. So now you have used the connotations both in the positive and in the negative manner, right? Positively भी use करके देख लिया हमने, negatively भी use करके देख लिया. अब हमारी जो exercise है वो कह रही है कि आपने words और उनके synonyms देने हैं. Words are on the board, synonyms are on the board. Sentences में आपको verbally create करके दूंगी, आपने अपने sentence bank में add कर देने हैं. ठीक है. शाइन का सिनोनिम है ग्लिटर. ठीक है. द सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द समर सीजन एंड द ग्लिटर. माई ड्रेस वॉज फिल्ड विद ग्लिटर एंड इट स्पार्कल्ड एट नाइट. नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइट और उसका सिनोनिम है लुमिनस. ठीक है. ब्राइट. शी इज अ वेरी लाइवली पर्सन. शी ऑलवेज wear bright color clothes, right? And luminous. Luminous reflectors were put on the road for the drivers to go straight at nights. Noise and clamor. We should not make a lot of noise when the teacher is not around. Clamor. The clamor created when the bowl or when the metal bowl fell on the floor disturbed everyone in the house. Lovely and beautiful. You are wearing a very lovely dress. Where did you buy it from? The beautiful scenes of Murray keep me captivated throughout the journey.
So I have construct the sentences from both the words and their synonyms. क्विक रिकैपिटुलेशन कर ले आज के लेसन की. आज हमने क्या किया? आज हमने की द पोएम द रेन. उसकी हमने पैराफ्रेजिंग की, ट्रांसलेशन की, वोकैबुलरी की एक्सरसाइजेस की जिसमें हमने सिनोनिम भी बनाए, एंटोनिम्स भी बनाए और हमने की डिनोटेशंस और कॉनोटेशंस. इनका डिफरेंस जाना और इनको पॉजिटिव और नेगेटिवली यूज किया. सबको कंप्लीट कर लेना जब तक कि मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में नहीं मिलती. मुझे दुआओं में याद रखना, पढ़ते रहना, हंसते रहना, खेलते रहना, लेकिन अपनी नमाज की सख्त परवाह करना. अल्लाह हाफिज.